5-10 મિનિટ માં તો કામ પતી જાય. હા હું ઓકે પાક્કું ઓકે આજે કરી મોનિકા. તો દિવ્યાએ મને શીખવાડ્યું બી રિસ્પોન્સિબલ. મોનિકા ઓકે. हाँ जय सच्चिदानंद. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, દાદા ભજનની રડ મને લાગી, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું પરિવકારો, જીવન મારું દાદા ચરણમાં રહેવું છે, તમારા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, તમારી આજ્ઞામાં રહીને, તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારી પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારી પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે,
દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Okay, નવ કલમો total number 1. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અવગણ ન દુભાય, ન દુભાવા પ્રત્યેના અનુમોદન પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ન દુભાય એવી શારવાત વાણી, શારવાત વર્તન અને શારવાત મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. જય સચિદાનંદ. Very good. Tomorrow number 2. Okay, ખુશી number 2. અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય કે દુભાવવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનું કિંચિત માત્ર પણ પ્રમાણ ન દુભાવાય એવી શાદવાદ વાણી, શાદવાદ વર્તન અને શાદવાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 3, Chennai. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવ કે શખ્સ, સાધુ સાધ્વી કે आचार्यનો अवनवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति आपो. શ્રેયા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સાક્ષીબા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, કંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવાના પ્રત્યેના અનુમોદય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની પરમ શક્તિ આપો. દેવ. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે સ્ત્રી પુરુષ અગર નલિંગધારી હોય તો તેના સંબંધી કિંચિત માત્ર પણ વિષય સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ કે વિચાર સંબંધી દોષો ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. દિવ્યા. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. વિધિ દીદી. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. અનુજ. દિવ્યા. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ દાદા અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાય બાળકો ફૂલ. હા, નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો આયરિયાણમ.
नमो आर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्व साहुणम् ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपा वप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद विधि दीदी हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोहबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मान्यता बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद चिनाय जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी आप सक्षम चाहते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। दिव्या हे दादा हाँ, आपके बच्चे हम है आपके चच्चे के हैं सच्चे कच्चे हीरे हैं सच्चे काम करेंगे अत्ते काम काम करेंगे करेंगे अच्छे सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ए तोरल आप तोरल आपको सिस्टर को बोलना कि 5-10 मिनट आना है ये इतना टाइम में। ओके, कल से आना। ओके ओके दक्ष हिंदी। हे शिवरात्मनाथ, जय सच्चिदानंद। हे शिवरात्मनाथ, देवाना पलक दक्ष लग हे दादा भगवान अपरमनंद दक्षिण पररी हे दादा भगवान यो दक्ष जेते हैं। जय सच्चिदानंद। Unmute. Can you hear me? Okay, Daksh, Hindi. हे शिवरात्मनाथ, भगवान पलक दक्ष अलग हे दादा भगवान परमानेंट दक्ष टेम्पररी है। हे दादा भगवान रियल दक्ष क्रिएटिव है। जय सच्चिदानंद।
Kanji, I have problem. Oh, What happened? I speak problem. Anidana? Jai Sachi. Hello? Yeah, we can hear you. Okay, okay. I don't know, something happened. Okay. कल किसको मालूम है क्या बात की हुई थी? Okay, Chinay. खुशी. जय सच्चिदानंद। कल वीरेन काका ने ये बताया था कि स्टडी के बारे में बताया था। हमें हमेशा अपने को कैसे समझ आए ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए। हमें मार्क ही स्कोर करना है, इसलिए पढ़ाई नहीं करनी है, हमें समझ के करनी है। ओके, अव्यय. जय सच्चिदानंद। हिरण काका ने ये बताया था कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे चित्त अगर कोई और चीज में होता है तो हमको वो सोचने का कि क्यों आता है ये। और आप तो पुत्र और आप भी बता जो हमारी नेगेटिव, तो उसके बारे में हमको सोचने का और हमको निकालने का उसको। ओके, स्टडी के बारे में क्या हुआ था, इसको मालूम है? सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला था? ओके, बढ़िया. ओके, ओके, मोनिका. जय सच्चिदानंद। स्टडीज के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में दीपक दादा ने ये बताया था कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं हमें उसे डेली रिवीजन करना चाहिए। अगर हम डेली अप टू डेट रहते हैं और उसे रिवाइज करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को, तो हमें कॉन्फिडेंट आता है और हम ऐसे अंडरस्टैंड भी हो जाते हैं और हमें समझ में भी आता है। और ओके, हिरण का नहीं वो कल किसी ने बताया था कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, सब्जेक्ट वीक है, और आज तो फ्री टाइम था, क्या किया था? सो ये बताना आपको सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, वीक लगता है, और आज तो फ्री टाइम था, मेनी पीपल क्या किया? ओके, जय सच्चिदानंद. श्रेया. हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा वीक सब्जेक्ट हिंदी है और मुझको सब सब्जेक्ट्स पसंद है, और मेरा आज फ्री टाइम नहीं था। बॉम्बे गई थी इसलिए कि ना? जय सच्चिदानंद। मुझे सारे सब्जेक्ट्स पसंद है और मुझे पहले मैथ्स वीक सब्जेक्ट था, उसमें मैं सिर्फ बहुत कम स्कोर करती थी। इस बार के रिजल्ट्स मुझे 70% है मैथ्स में, और मुझे आज फ्री टाइम सिर्फ मैंने 10 मिनट्स ही लिया था। करिश्मा. जय सच्चिदानंद। मेरी वीक सब्जेक्ट तमिल है और मुझे आज फ्री टाइम मैंने नहीं लिया था। ये वीक सब्जेक्ट आपने एवरीडे बहुत सुना है, अभी कुछ करना पड़ेगा. खुशी. जय सच्चिदानंद। मेरा वीक सब्जेक्ट तमिल और मैथ्स है, तो मैंने आज फ्री टाइम में वो नहीं किया। गौरव. मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स है और मैंने आज कल फ्री टाइम। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता? मेरे को गुजराती और हिंदी, गुजराती नहीं पसंद। अभी प्रदीप दादा बातें करेगा, आपको अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में. जय सच्चिदानंद। मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, पर मेरा सिविक्स वीक सब्जेक्ट है
और आज मुझे 30 मिनट्स का फ्री टाइम था, तो तब मैंने मम्मी के साथ बातें की थी कि स्कूल में क्या करवाया था। दक्ष, जय सच्चिदानंद। आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी संस्कृत नहीं है, और मुझे फ्री टाइम नहीं मिला था। दर्शन, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स है, और मैथ्स था, और इस बार मैंने मैथ्स में ज्यादा फोकस किया, तो मुझे इस बार 100 आउट ऑफ 100 आए मैथ्स में। ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं अच्छा लगता था, क्या हुआ? हाँ, वो कभी कभार हिस्ट्री में मैम टेस्ट लेते तो उसका कम मार्क्स आ जाता है। फिर मेरा एक भी वीक सब्जेक्ट नहीं है। देव, जय सच्चिदानंद। मेरा वीक सब्जेक्ट मैथ्स है, और आज मुझे 3 आवर्स मिले थे फ्री टाइम में, तो मैंने उसमें से 1 आवर पढ़ाई में मतलब होमवर्क में निकाला वो, और हाफ आवर रिपोर्ट सेंड करना किया, और बाकी का 1.5 आवर में मतलब ऐसे ही बात कर रहा था ऐसा। ओके, आप एवरीडे कितना सम करते हैं वीक सब्जेक्ट है मैथ? जब का मैथ है एवरीडे कितना सब्जेक्ट प्रॉब्लम करते हैं आप? मैं नहीं करता अभी, पहले करता था थोड़े, लेकिन अब नहीं करता। तो क्या फायदा होगा ये वीक सब्जेक्ट में? तो यू हैव टू कैच अप ना। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। देव, मैथ्स में कितना आता है अभी? मेरे एक बार बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे, लेकिन इस बार 18 आए 25 में से। 18? हाँ। तो आपको अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? 8 स्टैंडर्ड में तो आपको पक्का कर लेना पड़ेगा अभी, क्यों 1.5 घंटा ऐसे ऐसे बातें करते रहे तो थोड़ा तो करना नहीं रहे। आपका टाइम टेबल नहीं है यानी यू डोंट हैव अ टाइम टेबल। है टाइम टेबल बनाया है? हाँ। तो बताने के लिए खाली कि फॉलो करने नहीं, के लिए? आधा फॉलो होता है, आधा हाँ? फॉलो होता है, आधा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है फॉलो? मतलब टीवी मोबाइल देखने के टाइम पे हो जाता है, और मेरे आप पढ़ाई का टाइम आता है तो आलस आता है। करता हूँ सही, लेकिन पहले आलस आता है, उसके तो बाद बाजू में करता हूँ। कौन बैठे हैं? पापा है। तो पापा को परेशान करने का है आपको? नहीं। ऐसा क्यों करते हो फिर? सारे दिन वो मेहनत नहीं करते हैं? हाँ। तो हाँ, वो मेहनत करके खेलने के लिए आपको खेलने को कहाँ ना बोला है? लेकिन आप तो ब्राइट स्टूडेंट है, तो थोड़ा मेहनत करेगा तो अच्छा आएगा। हाँ, हाँ। ये आलस में भी, क्योंकि 8, 9, 10 वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? हाँ। हाँ, बाद में अभी खेल नहीं सकते। हमको खेलना है तो कितना भी खेलना है तो खेल सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। समझ में आया? हाँ। और ये खुशी और वो तमिल में क्यों नहीं करते हैं आप? कितना मार्क्स आते तमिल में खुशी? मुझे 100 में 50% ही आते हैं। कितना? 100 में 50% ही आते हैं। फाइन, ओके। कौन से क्लास में हो अभी आप? 8। 8? हाँ। अच्छा, लेकिन थोड़ा तुम्हारा इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि आई बिलीव 10th में श्रेय भाई 10th में वो पूरा मार्क्स गिनते हैं ना एडमिशन के लिए? नहीं, आई थिंक 12th में गिनते हैं। नहीं, 10th में पूरा। अच्छा, विधि को पता होगा। विधि, 10th में पूरे मार्क्स गिनते हैं ना? लैंग्वेज के भी मार्क्स गिनते हैं ना? हाँ, लैंग्वेज के भी गिनते हैं। हाँ, तो देखो थोड़ा इम्प्रूव ये करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज में इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं हम। ओके, तो वो अभी वो रेगुलरली करो। ये तो यू आर नॉट फॉलोइंग योर टाइम टेबल, ये बहुत मुश्किल वाली बात है।
कितना कितना परसेंटेज फॉलो होता है टाइम टेबल? 10%, 20%, 30%? नहीं होता है। तो मुझे मेहनत क्यों करवाई फिर? मेरा टाइम का सोचा नहीं? मैं कितना सिंसियरली बैठ के बात सब करके किया है। करो हाँ, ये टाइम टेबल फॉलो होगा ना, ये इट इज लाइक पर्सनल प्राइवेट नियम। वो 3 उसके लिए तो हम गोल के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन वो सब नियम ये टाइम टेबल में आ जाते हैं, इसीलिए हम टाइम टेबल बनाते हैं। और ये अगर हो जाता है, उसको सिंसियर हो ना खेलने पे, तो अच्छा टाइम कहाँ वेस्ट होता है? सब लोग बोलो टाइम कहाँ वेस्ट होता है? खेलने में। तो खेलने का टाइम नहीं रखा है? खेलने का टाइम तो रखा है, तो उसमें वो संतोष नहीं होता है? हाँ होता है। नहीं, वो फिर उसका टाइम बढ़ा दो, नहीं तो एक बार, बट फॉलो द टाइम टेबल। अब क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे तो वो तो डिजास्टर है। डिजास्टर समझते हैं? फॉल, फेलियर, अटर फेलियर ओनली। समझ में आया? अगर आपको मैं क्या बोलता हूँ, अगर 1 घंटा खेलने का रखा है, आपको 2 घंटा चाहिए तो 2 घंटा करो, लेकिन फिर 2 घंटे से 5 मिनट्स भी मोर नहीं चलेगा, तो रेस्ट ऑफ द टाइम आपका उपयोग में जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ वो? हाँ। बट आप अनकंट्रोल खेलेंगे, अनकंट्रोल, वो तो डेंजरस है ना। समझ में आया? उसके लिए क्या बताया है? वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। समझ में आया? हाँ। समझने का, खेलने का ज्यादा समय चाहिए तो उसको फिक्स तो करना पड़ेगा ना। कभी भी खेलेंगे तो कैसे चलेगा? ओके, सभी लोग, मैं खेलने को ना नहीं बोलता, खेलना ही चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो टाइम रखो, लेकिन बट डोंट क्रॉस दैट टाइम। वो टाइम क्रॉस हो गया यानी यू आर अटैकिंग योर सब्जेक्ट। समझ में आया? जो टाइम आपने जो सब्जेक्ट के लिए एलोकेट किया है उसमें आप खेल रहे हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देव, हाँ समझ में आया? हाँ अभी 8 है, 8 के बाद वी कैन नॉट एफोर्ड। समझ में आया? हाँ, ये, अरे ये पढ़ना भी एक बहुत बड़ी गेम है ऐसा लगेगा आपको। मैं जितना खेलता था ना, जस्ट 1 मिनट जी, मैं जितना खेलता था फिर उतना ही पढ़ने में मुझे मजा आने लगी, लेकिन फिर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं खेला नहीं, मुझे खेलने नहीं मिलता है, बिकॉज नाउ दैट फोकस इज ऑन स्टडी। आफ्टर 8 यू हैव टू फोकस। हाँ, ये आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत शक्तिशाली है, वो समझ के उसका उपयोग करना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके प्रदीप दादा, जी आपने सब सुना, अभी बातें करो। वीक सब्जेक्ट, रेगुलर, वीक सब्जेक्ट कैसे अच्छा करके कुछ सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे ये समझ में आता है कि अपने शरीर में कोई पार्ट वीक होता है तो उसकी असर अपने को आती है। तो ये वीक सब्जेक्ट जो है, तो ये तो इंसान ने बनाया हुआ, तो हमें उसको उनके मास्टर के पास जाना चाहिए और किसी भी तरह से उसको परफेक्ट करना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है। एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आई तो हमें नुकसान होता है, और हमें अभी ये पढ़ाई का हमारी ये उम्र है, तो हमें बराबर ढंग से पढ़ना चाहिए। और हमारे तो टीचर ऐसा कहते थे कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कम्युनिकेशन करो, पूछो हमें और बराबर पक्का कर लो। आज का समय मुझे पता नहीं है कि कैसा है। ये टीचर हमारे भविष्य के लिए बहुत इंटरेस्ट लेते थे। तो मैं आपको कहता हूं कि
अगर समय शायद बदल गया हो तो, लेकिन हमें खुद का भविष्य के लिए हमें इंटरेस्ट रखना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट पुअर है, नहीं आता है, तो उसका नुकसान मुझे है, तो मुझे ये नहीं करना है, तो इसके पीछे पड़ना है, उसका प्लानिंग करो, उसको परफेक्ट करो, बराबर। ये इस उम्र में ही होगा, आप जब बड़े हो जाओगे फिर पढ़ने वाले हो। ये उम्र किसके लिए है? पढ़ने के लिए, खेलने के लिए। अगर जो आपको अच्छी तरह से जीवन जीना चाहते हो, दादा भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, देश और समाज को कुछ काम में आवे ऐसा जीवन बनाना है, तो हमें कुछ खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। उनको तपश्चर्या बोला जाता है। जब तक हम तपश्चर्या महीना की बस मुझे परफेक्ट करना ही करना है, बस एट एनी कॉस्ट, मुझे नींद कम आएगी चलेगा, मैं कम खाऊंगा, लेकिन मेरा ये सब्जेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। उसको अंदर वो दिल में उनकी क्या, दीपक आनंद जी, दिल में क्या होना चाहिए वो समझ में नहीं आता हिंदी वर्ड। दिल में उसकी उत्सुकता होनी चाहिए। हाँ, मैं इंसान हूँ, इंसान ने बनाया हुआ सब्जेक्ट मुझे क्यों नहीं आवे? तो ठीक है, फिर मैं किसी भी तरह से उसकी क्या सिस्टम है वो ढूंढ निकालो, टीचर से पूछूं, ये करूं, फ्रेंड से पूछूं, लेकिन मुझे ये परफेक्ट करना ही है। जो आप ऐसी प्रकृति, जो आपके जीवन में ये सिस्टम डेवलप हो गई, तो आप कभी भी पीछे नहीं पड़ोगे। आप धर्म के मार्ग हो, व्यवहार के मार्ग हो, प्योरिटी का मार्ग हो, देश समाज में कोई भी काम करना है तो आप आगे निकल सकोगे, क्योंकि आप में शक्ति खुली होना बहुत जरूरी है। ये कौन सी शक्ति है ये? कि उसको निश्चय शक्ति बोलते हैं, कि जब तक ये मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं सोने वाला नहीं, मुझे ये करना ही है। तो नेचर आपको हेल्प करेगी। ये नेचर का बहुत बढ़िया साइंस समझने जैसा है। एक बार आपकी उम्र में कच्चे पड़ गए तो मम्मी पापा तो क्या कुछ बोलेंगे आपको। आप पास हो गए, पास होके आगे अगले स्टैंडर्ड में चले गए, ऐसे करते करते आपका ग्रेजुएशन हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रेजुएशन हो गया मतलब हम परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है। वो कैसे समझना है कि दादा भगवान, उनको केवल ज्ञान मतलब के उनको मोक्ष हाथ में आ गया, लेकिन उनको जो जगत कल्याण की भावना थी, तो उन्होंने एक सेंटेंस की, भाई ये जगत कैसे चलता है, उनको कौन चलाने वाला है। उनको सब अनुभव में आते हो, लेकिन वो जो वर्ड है उसको क्या शब्द दिया जाए, नाम दिया जाए, उनके लिए उन्हें कितने साल गुजारे। अभी दीपक आनंद जी साहब आपको बताएंगे। दीपक आनंद जी साहब, इतने लाइफ साल नहीं, बताओ उनको, बताओ जरा। इतने सारे 30 जन्म के ऐसा कुछ उन्होंने बताया। 30 लाइफ, ये 30 लाइफ ने कितना टाइम होता है सोचो। ये 1 लाइफ अबाउट 80 इयर्स की होती है, सो 24,000 3 into 80 is 240 years, यानी 250 years, 250 साल उन्होंने ये स्टडी में किया। समझ में आया? तो हमको तो 250 साल की बात नहीं करते, हम तो ये कुछ समय की बात कर, कुछ साल की बात करते हैं। हाँ, इसीलिए कविराज साहब ने ये सत्संग सुन के लिखा, अमोने मोक्ष मळतो तो छतारो काई ग्या जानी, हमारी भावना जहती जगत कल्याण करवानी। तो मैं आप लोगों को ये पूछता हूँ कि हम पढ़ाई किसके लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए, मान के लिए? बोलो। हमारे ये जीवन है, ये एजुकेशन है, हमारा मानसिक और हर तरफ से डेवलपमेंट है। अगर आप इतना डेवलप हो जाओगे तो हर बात आप समझने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। ये पढ़ाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वो हमें समझने जैसा है कि पढ़ाई क्यों करनी है। हम पढ़ाई करते हैं, मार्क्स आते हैं, इंटरेस्ट होता है, सब बात है, लेकिन क्यों करना है ये मुझे?
इसलिए मैं विनती करता हूं कि एक बार आप नक्की कर लो कि कोई भी सब्जेक्ट पुअर है तो उसमें मुझे परफेक्ट करना ही है। जो आपके अंदर में ये जो जोश नहीं होगा, એને શું કહેવાય दीपक आनंद जी ने अंदर जो समझ गए, जोश नहीं है तो ये नहीं होगा तो फिर अंदर मन है, बुद्धि है, अभी मैं तो पास हो जाता हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छी आती है, अरे क्या छोड़ो ना, अभी पास हो गए ना, पासिंग मार्क आ गया ना हमारा। नहीं, क्यों पासिंग मार्क? हम कोशिश करें कि परफेक्ट होना है, फिर बाद में जो हुआ वो बराबर है। दादा भगवान किसी भी चीज को उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया, इसीलिए वो दादा भगवान कहते हैं कि मैंने एक एक चीज को हर जगह पे ढूंढा है, सोचा है, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये क्या है। तो हमें दादा भगवान के मार्ग में हम आए हैं, तो हमें हमारा जितना जो लिमिटेशन है, हमारे जो फर्ज है, जो उम्र में जो काम करना है, उसमें हमें परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हो सके तो ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे पकड़ा दे। हमें कोई दो शब्द बोले तो उनके सामने हम चिढ़ जाते, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगी, वो करूंगा, ऐसा सब हमारे पर जिद है और करते भी है। तो आपने ऐसा जिद क्यों नहीं किया हमने कि इस सब्जेक्ट जब तक मुझे परफेक्ट नहीं होगा तब तक मुझे ये नहीं करना है, चलो हटाओ सबको। किया किसी ने ऐसा? वो शक्ति है, लेकिन हम शक्ति कहाँ यूज करते हैं और शक्ति कहाँ यूज करनी चाहिए। इसीलिए दादा भगवान के पास यही सीखने जैसा है। ये सत्संग में और कुछ नहीं है। हर इंसान के अंदर शक्ति है, लेकिन उसका कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे उसका फायदा लेना चाहिए, कैसे डेवलप करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो दीपक आनंद जी साहब बताएंगे शक्ति के बारे में। देखो, एक बात तो ऐसी है, आपको कितना साल पढ़ना है, आपकी कैपेसिटी क्या है, मुझे बताओ। ओके मोनिका, क्विकली। अभी मुझे 5 इयर्स और पढ़ाई करनी है। और 5 years, फाइन। करिश्मा? 10 years यानी टिल 10th, फाइन, वेरी गुड। और खुशी? हाँ, मुझे अभी 6 इयर्स पढ़ाई करनी। 8 और 6 यानी 14 years हो गया, 14 तक, फाइन, वेरी गुड। फिर खुशी अहमदाबाद, जल्दी बोलो, सोच के रखो सब लोग। हाँ, कितने? 7 साल। अभी कौन से में, 7th में हो? नहीं, अभी कॉलेज का गिन के। अच्छा, वही तो कॉलेज करना है ना, ठीक है। फिर विधि तो कॉलेज कर रही है, वो तो हो जाएगा। टोटल आपको जल्दी बोलो। 8 years. 8 years, fine. So you are in 6 or 7? 6 ना? Till college. ना, टिल कॉलेज, ओके। ऐसा बोलो, कॉलेज कर। श्रिया, आपको कॉलेज करना है? 10 years. हितक्षिमा? अरे इतना टाइम, अरे सब म्यूट करके रखा है। कॉलेज की मास्टर डिग्री। ओके फाइन। दर्शल? 10 years. कॉलेज करना है ना पूरा? हाँ, और मास्टर। हाँ, देव? 6 years. 6 years। अभी तो आप 10th में है। नहीं, 8. 8 और 6 यानी कितना गया? 14, 12 and 2 years। खाली 12th के बाद 2 साल ही करने का है। चलो ठीक है, चलेगा। अभी आई 10 years कॉलेज। 10 years। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, अभी सोचना जरा, टारगेट बहुत लंबा नहीं रखने का। टारगेट लंबा रखते हैं ना तो कई बार हम डर जाते हैं। हम ऐसा सोचे कि चलो 10 तक ही पढ़ने का है, लेकिन 10 में पूरा मार्क्स लाएंगे, चलेगा? हाँ। फिर खेलने का है, फिर खेलने का है, फिर मजा करने का है। सब लोगों को चलेगा? भूलना नहीं, लेकिन 10 तक कोई हमको हमारा नाम नहीं दे सके ऐसा करने का। चैलेंज है, प्रॉमिस है।
हाँ 10th या अभी 8th में आगे तो 2 ही साल पढ़ने का है, 3 ही साल पढ़ने का है। जो 6th में है वो 7, 8, 9 and 4 years ही पढ़ने का है। टारगेट बहुत लंबा रखते हैं ना तो रिजल्ट बिगड़ता है। टारगेट शॉर्ट रखो और उसको बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। चलेगा खुशी? हाँ 10th जस्ट स्टडी टिल 10th, लेकिन 10 में भुक्का बुला देंगे, बॉम्ब फोड़ेंगे हम। चलेगा देव? हाँ 10 के बाद देखेंगे क्या करना है, लेकिन 10 में तो धुआं निकाल देंगे सबका। क्या बोलते मोनिका? आप 10th में हैं अभी? हाँ तो 10 में सब धुआं निकाल दो सबका। ठीक है, बाद में फ्री है आप। चलेगा, वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी तो धुआं निकाल के रखेंगे सबका। श्रेय भाई अच्छा सही बात है ना? सही बात है। हाँ रजनी दादा? ओ परफेक्ट परफेक्ट। हाँ बहुत लंबा टारगेट नहीं रखने का हमको अभी। एवरीवन एग्री? एग्री, प्रॉमिस? हाँ अभी देखो, अभी वो झंझट नहीं है अभी लंबा। करिश्मा टेंशन मत लेना, आप 6th में है ना अभी? 5th में है ना? 5 years ओनली। 5 years तो क्या खेलते खेलते चले जाएगा, लेकिन 5 years में पूरा मार्क्स लाएंगे। चलेगा? ओनली 5 years। तो क्या फिर मजा करने का है, फिर अभी भी मजा करते करते मजा करेंगे हम। ठीक है, अभी आपने प्रॉमिस दिया है। हाँ तो बी सिंसियर टू योर प्रॉमिस। जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। ये सब सोचना, कल बातें करेंगे। जय सच्चिदानंद।